Hello viewers, a very good morning to all of you. Welcome to all of you in GIA Guidance program. In previous class, we were studying about time and tense. And in this tense, I defined the concept of time and tense, and I have also let you know the 5 kinds of verb. And I explained how do we use simple present tense in our day-to-day life. Now today we will look at present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So this is a very important chapter, dear students, and it will definitely help you to speak and to read English effectively. And I want to remind you one thing, that to speak good English, you must listen. Don't mind at all. When I speak in English, if you don't get, don't worry. Feel cool, calm, relaxed and comfortable, because when you listen English, automatically you will definitely speak English. So don't worry at all. When I speak in English, as a teacher of English, I do have to communicate in English with all of you. So do understand it, don't worry, enjoy my class. So, as in previous class you studied simple present tense. In this tense we taught about the action which happens regularly and repeatedly. We use the structure subject, V1, V5 plus objects, and we learned the technique how to convert into negative and questions. So now we will study C here. What are children? They are playing football. They are doing some action. Oh, see, this is a very girl. What she is doing? She is studying. So here we are going to talk about today present continuous tense. It means that action is on. The activity is going on. It means action has not completed yet, but it is going on. In grammar, it can be called also imperfect tense, progressive tense, incomplete action. So see here what girl is doing. She is singing a song now. It means what? It means she is singing, and still she is singing. Her action has not completed yet. It means she is continuing her job, her activity, her action. Means it generally means action is going on. See here the start. A start is a V1. We normally in this tense we use B form, fourth form of verb, like go, going, come, coming, write, writing, learn, learning, laugh, laughing. जब हम किसी वर्ब में V1 में ing लगाते हैं तो ये V4 बन जाते हैं. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि टेंस कंप्लीट वर्ब के स्टडी का नाम है. हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल से इसका अध्ययन किया था. ये बताता है मुझे कि 5 जो वर्ब के जो मेजर रूप हैं उसका हम लोग अपने वाक्यों में, सेंटेंस में बेहतर ढंग से कैसे प्रयोग करते, इसी का अध्ययन, इसी को टेंस कहते हैं. इट इज ए कंप्लीट स्टडी ऑफ वर्ब्स. सो इन दिस टेंस वी जनरली यूज V4. V4 means when we add V1 plus ing, it becomes V4. See here. We also learn that we can convert a sentence into 4: positive, negative, question and negative questions. I am starting. It is a positive. It is I am not starting. It is a negative. Am I starting? It is a question. See, look here. You are starting. She is starting. It is starting. We are starting. You are starting. They are starting. आप देख रहे हैं आई के साथ एम का लगता है इस्तेमाल, यू के साथ आ का लगता है,
सी के साथ इज का लगता है, इट के साथ इज का लगता है, वी के साथ आ का लगता है. Pronunciation is very important in English. When you are learning English, learn the correct pronunciation of the word. Many students, they don't pronounce is, am, are. So let's continue it and see here. This is the pattern, this is the structure we use to form continuous tense. To make continuous tense, as we told, that we use before of the verb. See, subject, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, फिर उसके बाद हम लोग is, am, are जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वो इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं. He is playing, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. जिस सेंटेंस में नो नॉट होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं. He is not playing. In a spoken English, is not को बोलते हैं हम लोग isn't. You can say he isn't playing. इसी तरह in the same way, questions means when we ask the questions. So hope all of you have understood the structure. Remember the structure, practice the structure, implement the structure. I always tell that language cannot you acquire in overnight. It comes by practice. The more you practice, the more you gain proficiency. Because English is not a knowledge-based subject. It is a completely skill-based subject, my dear boys and girls. So please remember in your mind and practice more and more to gain proficiency in it. So, see, next thing, where exactly we use this structure? इस स्ट्रक्चर का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है. क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कोई काम चल रहा है, हो रहा है. मैं हमेशा बोल रहा हूं कि एक्शन विच आर हैपनिंग एट अराउंड इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. इन द बिगिनिंग ऑफ आई एक्सप्लेन, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी, व्हाट इज हैपनिंग नाउ. मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं. तो ये जो काम हो रहा है उसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. जब भी कोई एक्शन, मैंने स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट इज, एम, आर, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये भी जान ले आप लोग कि इज का प्रयोग कहां होता है, एम का प्रयोग कहां होता है, आ का प्रयोग कहां होता है. मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोग को समझाया है और बताया भी है. आई के साथ एम, वी के साथ आ, यू के साथ आ, ही, शी, इट, इज लगते हैं, दे के साथ आर लगते हैं. आप जानते हैं ये सारे चीज. टेम्पोररी सिचुएशन के साथ आई एम स्टेइंग विद द फ्रेंड एट द मोमेंट. दीज आर द टू uses of continuous tense we normally use at two place, and hope this is enough for all of you to understand it. Remember it. कुछ अंग्रेजी में वर्ब हैं जो जिन्हें स्टैटिक वर्ब कहते हैं, इसका बिफोर नॉर्मली नहीं बनाया जाता है. इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसे भी आप रखेंगे. जैसे सी का बिफोर नहीं होता है. हियर को मीनिंग चेंज कर जाते हैं, बिफोर तो बन जाते हैं. हियर मीन्स जनरल लिसनिंग विद ईयर. जब इसको बोलते हैं हियरिंग मीन्स जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो मीनिंग चेंज कर जाते हैं. बिफोर तो कहीं कहीं बन जाते हैं लेकिन मीनिंग चेंज कर जाते हैं. ये सारे वर्ड्स हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे. सी का सीइंग नहीं होगा, लव का लविंग नहीं होगा, हेड का हेटिंग नहीं होगा, नो का नोइंग नहीं. बोलता आई एम नोइंग यू. नो, डोंट से आई एम नोइंग यू, सिंपली से आई नो यू. आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, सिंपली से. डोंट से आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश. It gives the meaning of continuous tense, but we have to use simple present tense to make it clear. कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड, ये सारे वर्ड हैं. मैंने स्ट्रक्चर बताया अभी. सब्जेक्ट इज, एम, आ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारे एडवर्ब हैं. नाउ मतलब अभी. बोलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं अभी. नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. ये वर्ड जहां लगे ये कंटिन्यूअस टेंस के सिग्नल वर्ड से नाउ.
Right now, I am walking. Right now, I am walking. Right now, I am walking on my grammar book. On my grammar book. Look. Surprise. Look. They are playing. Look. देखो. Look. देखो वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं. They are laughing at me. ये एडवर्ब है जिसका now, right now, look. इसी तरह से वर्ड हमारा है listen. Listen. He is teaching. Listen. ध्यान से सुनो. Listen. They are talking something important thing. Tonight. ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये सारे जो एडवर्ब हैं, इसका नॉर्मली हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं. Tonight. I am going to Delhi tonight. I am working on my book tonight. This evening. बहुत सारे वर्ड हैं. Still. अब बोलना है कि मैं अभी तक सीख रहा हूं. I am still learning English. अभी तक मैं स्टडी कर रहा हूं. I am still studying. अभी तक मैं सोच रहा हूं. I am still thinking. अभी तक प्लानिंग कर रहा हूं. I am still planning. तो ये सारे वर्ड हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप उसे नेगेटिव बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, नेगेटिव क्वेश्चन बनाइएगा. जैसे कि नाउ आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग एक सेंटेंस हमारा हुआ जो पॉजिटिव सेंटेंस है. इसको नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे आई एम नॉट टीचिंग. जब क्वेश्चन बनाएंगे एम आई टीचिंग. नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे एम आई नॉट टीचिंग. रिमेंबर इट. आई एम रीडिंग अ नोवेल. दिस इज पॉजिटिव. आई एम नॉट रीडिंग अ नोवेल. दिस इज अ नेगेटिव. Am I reading a novel? This is interrogative. So practice makes a man perfect. I always tell all of you, practice, learn, relearn, and practice and implement in your life. So you will practice more and more. So now I'll move my next slide, my next tense. That is, we have also exercise on continuous tense. You will do it. You will practice it. And you will send it to me. Very important. See, जब जो काम तुरंत फिलहाल हो रहा था, नाउ हो रहा था, उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस. उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस. जब कोई काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, ओवर हो गया, लेकिन उसका जो है प्रेजेंट से कुछ ना कुछ रिलेवेंसी है, उससे कनेक्शन है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं. देखिए ये क्या कर रही है. व्हाट शी हैज डन. केक बना हुआ. ये शी हैज मेड ए डिलीशियस केक. उसने एक केक तैयार किया है. तो जो काम तैयार हो गया, जो काम हो गया है, हो चुका है, उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं. एक्शन हैज कंप्लीटेड नाउ. तुरंत काम खत्म हो गया है. इस टेंस का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम फिनिश हो जाता है. इसे फिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं, इसे कंप्लीट एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि काम जो है हमारा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है. देखिए, रिमेंबर इट. हैज और हैव. इन दिस टेंस, इन कंटिन्यूअस टेंस, वी हैव लर्न्ड द यूज ऑफ वी फॉर. हम लोग और इस टेंस में हम लोग हैज और हैव वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज. वर्ब का तीसरा रूप हम लोग वर्ब के रूप से पहचानते हैं कि टेंस हमारा कौन सा है. वर्ब का तीसरा रूप आई, वी, दे. आई हैव ईटन एन एप्पल. यू हैव ईटन एन एप्पल. दे हैव ईटन एप्पल. इसका मतलब मैंने एप्पल खा चुका हूं, खा लिया है, काम अभी हुआ है. इसके इन तीनों वर्ड के साथ आई हैव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरह से ही हैज ईटन एप्पल, शी हैज ईटन एप्पल,
इट हैज ईटन एप्पल, जॉन हैज ईटन एप्पल। मतलब ये सारों के साथ हैज और हैव लगता है। आप जानते हैं कि हैज और हैव का कहां इस्तेमाल होता है, यू नो वेल। आप ये भी जानते हैं कि आप सभी बच्चे, ऑल ऑफ यू नो वेल, हैज इज सिंगुलर और हैव इज प्लूरल। यू रिमेंबर इट, यू नो इट वेल। और मैं हर स्ट्रक्चर का जानता हूं कि पॉजिटिव फॉर्म होते हैं, नेगेटिव फॉर्म होते हैं और क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। यह आपको जानना बेहद जरूरी है। अभी मैंने बताया ही हैज स्टार्टेड बिजनेस, ये पॉजिटिव। ही हैज नॉट स्टार्टेड ए बिजनेस, दिस इज द नेगेटिव। हैज ही स्टार्टेड ए बिजनेस, क्वेश्चन हो गया। बोलिए मैंने किताब लिखा है, आई हैव रिटन अ बुक। मैंने किताब नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन अ बुक। क्या मैंने किताब लिखा है, हैव आई रिटन अ बुक। मेरी मुलाकात आलोक सर से हुई है, आई हैव मेट आलोक सर। मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, आई हैव टॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो टेंस खत्म हो गया, जो फिनिश हो गया, उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि वर्क इज कॉम्प्लीट, वर्क हैज बीन कॉम्प्लीटेड, वर्क इज ओवर नाउ। Now see more example, I can elaborate it here. What is the structure of present perfect tense? Present perfect tense, perfect का मीनिंग ही होता है, क्या होता है, कंप्लीट। परफेक्ट का मीनिंग होता है फिनिश्ड। नाम ही ए वर्ड टू द वाइज, ए हिंट इज एनफ फॉर द वाइज पर्सन। हर टेंस अपने नाम का मीनिंग खुद एक्सप्लेन करता है, ये बात आप खुद समझेंगे। कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, इसका मीनिंग खुद दे रहा है। परफेक्ट बोल रहे हैं, इसका मीनिंग खुद दे रहा है। तो जो काम खत्म हो गया है हमारा, और आप सभी जानते हैं कि हर सेंटेंस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यू नो वेल। और आप ये भी जानते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं हम लोग फर्स्ट, हैज और हैव का भी प्रयोग करते हैं इस टेंस में। वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम ग्रामर में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इस टेंस में इस्तेमाल होता है। फाइनली ऑब्जेक्ट। यह हमारा स्ट्रक्चर जो हो गया, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और आप जानते हैं प्लस और माइनस, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग नोट लगाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर विल बी सेम, हैज, हैव, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी हियर, दिस इज अ नेगेटिव। क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं। हैज और हैव को हम लोग पहले लेते आते हैं। हैज और हैव हमारा पहले आ जाता है, इसका पहला पोजीशन हो जाता है। सब्जेक्ट बाद में हो जाते हैं, इसके बाद वर्ब के तीसरे रूप लगते हैं। फाइनली एट द एंड वी एंड क्वेश्चन मार्क इन रिटन इंग्लिश। स्टूडेंट समटाइम डोंट राइट in interrogative sentence question mark. So always in positive or negative sentence put full stop. This is a full stop. This is my question mark. Remember, in spoken English we don't use it. One thing more I want to tell you here, has not को spoken English में हम लोग hasn't भी कहते हैं, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वी से इट कॉन्ट्रैक्शन। इन द सेम वे, हैव प्लस नॉट, हैवंट, हैजंट,
haven't. Repeat what I say. Repeat what I say, because English comes by repetition. Always practice what I say. Practice, practice, practice. This is the key to learning. This is the key to progress and key to success. अब बोलो, मैं नाश्ता कर चुका हूं. I have taken breakfast. नाश्ता नहीं किया. I have not taken breakfast. क्या मैंने नाश्ता कर लिया? Have I taken breakfast? See, मैंने ये फिल्म देखा है. I have seen this movie. मैंने ये फिल्म नहीं देखा है. I have not seen this movie. क्या मैंने ये फिल्म देखा है? Have I seen this movie? So hope all of you have understood the structure. पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन. लेकिन कुछ वर्ड होते हैं, कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जो हम लोग हर टेंस में इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मैंने सिग्नल वर्ड का इस्तेमाल किया था. हमने कंटिन्यूअस टेंस भी सिग्नल वर्ड का इस्तेमाल किया था, और परफेक्ट टेंस में भी वी यूज सम सिग्नल वर्ड्स. सी हियर. नेवर, आप जानते हैं नेवर मीन्स कभी नहीं. आप बोलिए मैंने कभी भूत नहीं देखा है. आई हैव नेवर सीन गोस्ट. मैंने गॉड को नहीं देखा है. आई हैव नेवर सीन गॉड. मैंने कभी शाहरुख खान से नहीं मिला हूं. आई हैव नेवर मेट शाहरुख खान. मैंने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है. आई हैव नेवर रेड दिस चैप्टर. नेवर मीन्स कभी नहीं. इसका हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं. आई हैव नेवर डन. मैंने इसे कभी नहीं किया लाइफ में. आई हैव नेवर. मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया है. आई हैव नेवर स्मोक्ड सिगरेट. मैंने कभी किसी को डांटा नहीं है. आई हैव नेवर स्कॉल्डेड एनीवन. आई हैव नेवर डन इट. रिमेंबर इट. नेवर. नेक्स्ट वर्ड, ये एडवर्ब है ऑलरेडी. इट मीन्स पहले ही. आई हैव ऑलरेडी टॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव ऑलरेडी. ऑलरेडी मीन्स पहले ही काम कर लिया है. मैंने पहले ही आपको वर्ब के पांचों रूप के बता दिया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. I have already done my homework. मैंने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया है. जस्ट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत. He has just come. I have just met you. I have just taken breakfast. Just I have taken. तो just का मतलब होता है तुरंत. I have just discussed it. तो ये सारे my dear students, these are the words never, already, just. हम लोग यूज करते हैं. एक वर्ड और होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं हम लोग. वी यूज. See more examples. Yet, इसका नेगेटिव सेंटेंस में अब तक, वो अभी तक नहीं आया है. He hasn't come yet. मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है ये चैप्टर. I have not read yet this chapter. Yet, अब तक. I have not yet joined university. I haven't learnt yet pronunciation. तो yet और एक वर्ड और होते हैं इवर, शायद कभी. आप बच्चे को बोलते हैं क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? Have you ever seen the ताजमहल? क्या कभी आप अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई है? Have you ever met अमिताभ बच्चन? तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, ये सारे एडवर्ब्स हैं. We frequently use in present perfect tense. Perfect means complete action. Perfect बोलते हैं. He is a perfect boy. Means complete boy. He is a perfect teacher. Complete teacher. Practice.
वी हैव मेनी मोर वर्ड्स. रिसेंटली, मैंने दिल्ली में अभी हाल ही में एक फ्लैट खरीदा है. आई हैव रिसेंटली. रिसेंटली मीन्स आई हैव रिसेंटली बॉट ए फ्लैट इन दिल्ली. हाल ही में मैं दिल्ली गया था. आई हैव गॉन टू दिल्ली रिसेंटली. मैंने अभी हाल ही में आपको ये चैप्टर पढ़ाया है. आई हैव रिसेंटली टॉट दिस चैप्टर. मैंने रिसेंटली एक बायोग्राफी खरीदी है. आई हैव रिसेंटली बॉट ए बायोग्राफी ऑन महात्मा गांधी. आई हैव रिसेंटली रेड विंग्स ऑफ फायर. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड continuous tense and perfect tense. Continuous means action is going on. Perfect means complete action. Now move forward. Look at our, we have also assignment, because I completely believe in practice, because English comes by practice. You do exercise. I have given exercise. You practice it. Write the correct form of the verbs. This sort of questions comes in your examinations. You have to use the exact correct form of the verb, so you will solve it. Now we are going to study present perfect continuous tense. Remember, present perfect continuous tense. See, started reading here at 9 am, but now time is 11 am. Started reading 9 o'clock, but now time is 11 o'clock. Action started at 9 o'clock, but it is now, काम शुरू बहुत पहले हुआ, but it is still going on. This we call present perfect continuous tense. और इस टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? For and since. For and since are preposition which show the time. It is a time preposition, right? Very important word. If you don't understand the use of for and since, you will not understand present perfect continuous tense, right? See here, look at the since means point of time, right? For means period of time, isn't it? Period means duration. Since means fixed time. Definite, indefinite. अगर टाइम हो गया, जनरली घड़ी, कैलेंडर जो टाइम बताते हैं 8 o'clock. सिंस 8 o'clock बोलिए, सिंस जनवरी बोलिए, सिंस 5th फरवरी बोलिए, वहां आप सिंस लगाएंगे. डेट होगा, किसी भी महीने का नाम रहेगा, धड़ल्ले से देखिए, जनवरी, फरवरी. ओ, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू यूज व्हाट? सिंस, राइट? कोई वीक का नाम, ईयर नेम रहेंगे, स्टेज ऑफ मंथ्स रहेंगे, यस्टरडे रहेंगे, चाइल्डहुड रहेगा. ये सारे जगह फॉर सिंस लगते हैं. देखिए यहां, इसे मैं थोड़ा एलिब्रेट और कर देता हूं आप लोगों को. जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था फॉर सिंस के यूज के बारे में, ये जो टर्म है ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम. वेयर एज सिंस इज कंसर्न्ड, it shows point of time, means time is fixed, right? Period means duration, 1 2 3 4. अब बोलो 2 घंटा से, तो आप बोल सकते हैं for 2 hours. For 2 hours. आप बोलिए 10 मिनट से, तो बोलिए for 10 minutes, राइट? आपको बोलना है 5 दिनों से, for 5 days, राइट? For 5 days. आपको बोलना है महीनों से, for 6
months, for 6 months, लंबे टाइम से, for a long time. These are the places where we use for. As far as since is concerned, जब भी किसी भी दिन का नाम रहेगा, जैसे कि देखिए वेंसडे, वेंसडे, राइट, तो दिन के पहले हम लोग सिंस लगाते हैं. सिंस फिक्स है, किसी महीना का नाम रहेगा सिंस फेब्रुवरी, राइट, isn't it? Hope you have understood. सिंस का इस्तेमाल और एक जगह होगा, सिंस 8 o'clock, यहां वी विल डेफिनेटली यूज सिंस. अगर किसी ईयर होगा सिंस 1984, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस यस्टरडे, सिंस टुडे, तो ये सारे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले वी विल अंडरस्टैंड इट. वी शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन आवर माइंड, नॉट डिफिकल्टी एनी. कहां फॉर यूज करें, वेयर टू यूज फॉर, वेयर टू यूज सिंस. इट शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड. प्रैक्टिस, फिक्स इन योर माइंड and write down it simply. See, structure is very simple here, very simple. मैं जैसा बताता हूं कि वर्ब के फॉर्म से हम लोग टेंस को पहचानते हैं. हैज, हैव, बीन, बिफोर, इस टेंस में इस्तेमाल. कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन अब तक चल रहा है. मैंने पढ़ाना 2000 से शुरू किया था लेकिन आज का साल 2021 है. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000. रिमेंबर, आई स्टार्टेड माई करियर एज ए टीचर इन 2000, नाउ 21. मैंने काम करना छोड़ा नहीं है, टीचिंग का जॉब स्टिल कर रहा हूं. तो ये काम हो रहा है. इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को फोर सीन्स का आप समझ गए. स्ट्रक्चर देख लें एक नजर. एट ए ग्लांस लुक एट स्ट्रक्चर. फर्स्ट, सब्जेक्ट हैज, हैव, राइट, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्लिक सिंस टाइम, राइट. अब बोलिए कि मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years. 2 घंटे से मैं स्टडी कर रहा हूं इस नॉवेल की. आई हैव बीन स्टडिंग दिस नॉवेल फॉर 2 hours. वेंसडे से मैं तैयारी कर रहा हूं इस एग्जाम की. आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस वेंसडे. अरे भैया, आपका मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा हूं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock. And now it is 12 o'clock. 1984, मैं गया शहर में 1984 से रह रहा हूं. आई हैव बीन लिविंग इन गया सिंस 1984. आप जानते हैं कि नेगेटिव लगाने के लिए सिर्फ नोट लगाएंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए हैज, हैव को हम पहले कर देंगे. अब जैसे आप बोलोगे कि मैं इस नॉवेल को 5 दिनों से पढ़ रहा हूं. सपोज, इमेजिन इट, I have been reading this novel for 5 days. Negative क्या होगा? Repeat what I say always. I have not been reading this novel for 5 days. Convert this sentence into interrogative. Have I been studying this novel for 5 days? So hope all of you understood this tense. जैसे I have been walking, we have been eating, you have been walking, they have been sleeping, running. अब बोलिए कि मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूं. I have been walking for 3 days. हम लोग सो रहे हैं सुबह से. I have been sleeping. So hope all of you have understood this tense. इस टेंस का इस्तेमाल जो काम पहले शुरू हुआ था, अब मैं आप लोगों को एक
जो मैंने 4 टेंस पढ़ा, प्रेजेंट डेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट इज द V4, परफेक्ट सब्जेक्ट हैज द V3 प्लस ऑब्जेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट हैज हैव बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं जब काम कोई रेगुलरली होता है, जब कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं जब काम जारी है, परफेक्ट कोई काम पूरा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम पहले शुरू हुआ था लेकिन अब तक चल रहा है। बच्चों, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस 4 सब डिविजन ऑफ टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इंग्लिश इज फॉर योर लाइफ ऑल्सो। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि ये अंग्रेजी का न्यू है। मैंने हर पार्ट का एक्सरसाइज सेट भी बनाया आप लोगों के लिए, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेरा जो हम लोगों का जो गया गाइडेंस प्रोग्राम का अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसे जहां डिफिकल्टी आए बार बार देखें, नोट करें, समझें, अपनी डायरी में करें, नोट कर लें, और जहां आपको परेशानी आती है, वेयर यू फेस डिफिकल्टी, जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, आई विल इमीडिएटली कॉन्टेक्ट यू, यू ड्रॉप योर नंबर ऑल्सो, आई विल गिव यू सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इन टेंस, डोंट वरी। एंड यू लाइक माई चैनल, subscribe it so that maximum student can benefit from this learning. Hope enjoy learning English. So finally I want to conclude today's chapter. Hope to meet you in next class. Goodbye.